Good afternoon, everyone. My name is Navjot Kaur, and I'm the Program Manager for Transformation. I welcome you all to the first session of Inclusion Adda, a platform for career progression talks. Inclusion Adda is an initiative by CDF Transformation that aims to empower people of marginalized communities like transgenders, people with disabilities, acid attack victims, etc. This is a series of webinars for and by people from disadvantaged and minority communities, namely LGBTQIA+, educationists, mental health experts, PWDs, acid attack survivors, etc. Transformation aims to mainstream these groups into the society, starting from building of knowledge in IT, skill building, and then moving towards mainstream employment or entrepreneurial opportunities. The three focus areas of the project are skill building and employability, entrepreneurship, and job placement. Before we start, I would like to introduce our panelists, Ramkali ji and Deepika, to all of you. Ramkali ji is a social activist and founder of Basera, an organization working for trans rights in Noida, with special focus on health, education, and rights of members of the transgender and Kinnar community. Basera is our outreach partner. Basera is the outreach partner of CDF's Transformation Career Progression Fellowship Program. Ramkali ji has been running the organization since 2011. She is the first trans woman from Delhi to organize an awareness program with Delhi Traffic Police and Delhi State Legal Authorities. She was also a part of Bhuvan Bam's documentary on COVID-19. Deepika, on the other hand, is a transformation fellow, and CDF Transformation is very proud to share that from being abused, she has transformed to speeding up justice for others. Deepika is currently an associate at Lok Adalat, Karkaduma Court, Delhi. Deepika is also a professional dancer and has performed at platforms like National Seminar on Culture and Philosophy, Ayodhya, Delhi State Legal Service Authority, and Rajdhani College, Delhi University. I welcome you both to the panel. Thank you so much for joining. So I would like to start asking questions. And मेरा पहला question रामकली जी के लिए है. रामकली जी कैसे हैं आप? आपकी वीडियो नहीं दिख रही. हाँ जी. आप म्यूट पे हैं मैम. हेलो जी मैम. मेरे ख्याल से थोड़े पास बैठे हैं तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा. यस मैम. जी बोलिए मैम. थोड़ा एको आ रहा है रामकली जी, अगर आप और दीपिका थोड़े डिस्टेंस पे चले जाए. यस मैम. हेलो. हेलो. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. जी मैम. माया बोल रही हूँ. मेरा फोन में ना वो वाईफाई नहीं चल रहा है. मैं सोनाली के साथ ले रही हूँ क्लास. हाँ जी, कोई बात नहीं दीपिका, हम स्टार्ट करते हैं. मैं माया बोल रही हूँ. हाँ जी, ठीक है माया, ठीक है. तो रामकली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आप फाउंडर हैं बसेरा की और आप सालों से ट्रांस इश्यूज के साथ जुड़ी हुई हैं उस पर वर्क करने के लिए, तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सबको नमस्ते. जितने भी मेरे मेंबर है यहाँ पे, जितने भी मेरे लोग हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते. और हाँ, मैं जो आइडिया आया है वो 2006 में आया है. और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. बाय बर्थ मेरा नाम रिजवान अंसारी है और एज ए ट्रांस मेरा नाम रामकली है. तो मेरी शुरुआत जो थोड़ी लाइफ की है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं जॉब करूँ, मैं आगे बढ़ूँ. जो मेरी एक पहचान हुई थी नोएडा के अंदर, वो हुई थी एज ए सेक्स वर्कर. मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की एक सेक्स वर्कर से. और जब मैं सेक्स वर्क करने के लिए जाती थी तो वहीं से फर्स्ट मुझे जो जॉब का ऑफर आया, वो मैंने पीयर एजुकेटर से अपनी लाइफ स्टार्ट की एज ए पीयर एजुकेटर.
तो उस टाइम पे मैं सेक्स वर्क करती थी और मैं पीयर एजुकेटर भी थी। तो वहीं से धीरे धीरे माइंड आया कि जब मैं कहीं और जाती हूँ जॉब करने के लिए या जॉब मांगने के लिए, तो मेरे इस जेंडर को देख के, मेरी बॉडी देख के, मेरी एक्टिविटी को देख के हमेशा हर किसी का नजरिया जो था वो अलग था। कि अगर मैं अदर सेक्टर में एनजीओ लाइन तो ठीक है, मैं पीयर थी, लेकिन 1500 रुपए मिलते थे। 1500 रुपए में पेट भरना और घर का रेंट देना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सेक्स वर्क भी करती थी। और सेक्स वर्क बहुत छोटा शब्द है, सेक्स वर्क, कि अगर हम सेक्स वर्क पे खड़े हैं तो ये नहीं है कि हम वहां पे खड़े हैं तो हमें पैसा मिलेगा। कभी कभी ये भी होता है जो हम पैसा कमाते हैं वो भी हमारा चला जाता है। वहां पे हमें हमारी सेफ्टी नहीं मिलती, वहां पे हमारी जान का खतरा है, वहां पे हमें सबसे बड़ी चीज एचआईवी होने का खतरा है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जब तक मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे चेहरे पे चमक है, मेरी बॉडी में जान है, तो मैं सेक्स वर्क के लिए खड़ी हूँ। और जब मैं थोड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी तो शायद जब मैं सेक्स वर्क करने के लिए जाऊंगी तो वहां पे कोई क्लाइंट मुझे ना मिले। तो वहीं से मेरी सोच बदली। जब मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती थी जॉब मांगने के लिए, तो वो मेरी हाव भाव को देख के, मेरी एक्टिविटी को देख के वो हमेशा मुझे धिक्कारते थे, अरे आप तो हिजड़े हो ना। देन मैंने कितनी जगह प्यून की नौकरी की है, मैंने टॉयलेट साफ किए है, मैंने झाड़ू पोछा भी लगाया है, मैंने लैट्रिन तक साफ की है कंपनियों में जाके। लेकिन फिर भी मुझे 10 दिन और 15 दिन से ज्यादा किसी ने नहीं रखा। सबने बोला आप तो हिजड़े हो ना, आपकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा, या किसी ना किसी वजह से मुझे वहां से कुछ और बोल के निकाल दिया जाता था। तो एज ए पीयर एजुकेटर मैं वहां पे काम करती थी। और फिर धीरे धीरे करके मैंने सोचा मैं अपना एक और आगे बढ़ूंगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगी। तो मैंने ये बसेरा रजिस्टर करवाई साल 2006 में। और पीयर एजुकेटर, फिर आउटरीच वर्कर, फिर काउंसलर, और अभी मैं नोएडा जीबी नगर के अंदर अपना सीबीओ लेके बैठी हूँ, बसेरा सामाजिक संस्थान। मैं साल 2011 से अपनी बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, उनकी हेल्थ के लिए काम करती हूँ, उनके राइट्स के लिए काम करती हूँ, उनके एजुकेशन के लिए काम करती हूँ। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं सभी से, जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पे, मैं उनसे यही थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि अगर सोचा जाए तो शायद इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे को ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं आती, मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का। मेरे इस जेंडर को देख के, मेरे हाव भाव को देख के, जब मैं बचपन में ही किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जब वो किसी काम की शुरुआत करता है और उसको वहां से कुछ ऐसी ठेस लगती है, कुछ ऐसा होता है उसके साथ में, तो शायद वो पूरी लाइफ उस चीज को यहाँ बिठा के रखती है या रखता है, और वो उस चीज को लेके कभी भूल नहीं पाता और ना ही आगे बढ़ पाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था मेरे गांव में। मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ, कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला और बहुत बड़ी बात हो गई थी जिस जब मुझे मदरसे से निकाला था। तो और तो वही चीज मेरे यहाँ पे थी जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाई। लेकिन अभी मैं क्लास लेती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, कंप्यूटर सीख रही हूँ। और इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता, जो मैंने बोला। तो मेरी एक छोटी सी शुरुआत थी कि मैंने सीबीओ से शुरुआत की, और आज मैं नोएडा जीबी नगर के अंदर अपना सीबीओ लेके बैठी हूँ, और मैं अपनी बहुत सारी बहनों के लिए काम करती हूँ। जी, थैंक यू रामकली जी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और आपसे जब हम बात करते हैं हमें हमेशा मोटिवेशन मिलती है, और अब थैंक यू। हमारे लिए सबके लिए मोटिवेशन है। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दीपिका से पूछना चाहती हूँ कि दीपिका, आप भी रामकली जी की तरह आपने भी काफी सारे प्रोफेशन ट्राई करे हैं। आप डांसर रह चुकी हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर रह चुकी हैं। तो ये लीगल एसोसिएट बनने का आइडिया आपको कहाँ से मिला? नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है और मैं बेसिकली यूपी की रहने वाली हूँ, बट मैं दिल्ली में पिछले 5 सालों से हूँ। मैं पहले एनजीओ सेक्टर में जॉब करती थी, अभी भी कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पहले से ही सोशल काम करने का बहुत ही मन था। और सोशल वर्क करने की वजह से ही मुझे अपनी जिंदगी को एक रास्ता, एक वे, जिसे कहते हैं, वो मुझे मिला कि मतलब अपनी जिंदगी, मतलब क्योंकि मैं जब अपने गांव में रहती थी तो मुझे बस 3 जेंडर, मतलब जेंडर तो नहीं बोलेंगे, बट मतलब 3 चीजें पता था कि मेल, फीमेल, और कुछ जो अलग होते हैं वो हिजड़ा होते हैं। मुझे ट्रांस के बारे में नहीं पता था, बट ये सोशल एक्टिविटी काम करने के बाद ही मुझे पता चला
कि नहीं, हम जैसे लोगों को ट्रांसजेंडर बोला जाता है, हिजड़ा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं तब से मैं एनजीओ से जुड़ गई। और रही बात ये एसोसिएट मेंबर बनने की, तो ये आइडिया मुझे जब मैं दिल्ली में आई थी स्टार्टिंग में, तो एक मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम है बबली, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करती है, गेट नंबर 7 पे वो पास बनाती है। तो जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मेरे आने के एक हफ्ता बाद ही, मतलब एक हफ्ता पहले ही उसकी जॉब लगी थी। तो मतलब मैं जब यहाँ पे आई तो कई लोगों ने बोला मुझे, इवन मतलब जो रामकली माँ है मेरी, तो उन्होंने भी बोला था कि अगर तू एक हफ्ता पहले आई रहती तो शायद तेरी जॉब उसमें लग गई रहती। बट मैं लेट हो गई थी एक हफ्ता, शायद मेरा बैड लक था, मैं एक हफ्ता लेट आ गई थी अपने गांव से। और तब से मुझे वो अंदर से वो एक इच्छा जग गई कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मतलब होता है ना कि हरदम मतलब मेरे माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस हो रही है समाज वालों की वजह से, क्योंकि समाज वालों ने हमारे बारे में कभी पॉजिटिव थिंक नहीं दिया है, हरदम नेगेटिव थिंक दिया है कि आप, अरे आपका लड़का तो ये कर रहा है, अरे आपका लड़का तो साड़ी पहनता है, आपका लड़का मतलब नॉट ए हिजड़ा, नॉट ए किन्नर, बट लोगों ने बोला कि आपका तो लड़का छक्का है। तो इस वजह से, इन वर्डों की वजह से हमारे माँ बाप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई है। बट मुझे ऐसा लगा था कि शायद अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में, चाहे किसी भी, मतलब जरूरी है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ही, बट किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, एक अच्छे फील्ड में मैं अगर जॉब करती हूँ, तो शायद मेरे बाप, चाहे मेरे मम्मी, चाहे मेरे पापा, चाहे मेरे भाई बहन एक फक्र से बोल सकेंगे कि क्या हुआ, मेरा लड़का अगर तुम लोग की नजरों में छक्का है, चाहे तुम लोग की नजर में हिजड़ा है, तो क्या हुआ, आज के टाइम में वो हिजड़ा होकर के भी वो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। तुम लोग मर्द होकर के क्या कर रहे हो? कम से कम उनको एक जवाब देने का एक वो रास्ता मिल सकेगा, उनके पास एक जवाब रह सके, जो हरदम उनके चुप्पी का, मतलब मैं उनके चुप रहने का वजह बनी हूँ। तो कम से कम मेरा ये भी था कि मैं उनके आंसर देने का भी वजह बनूं, वो भी कॉन्फिडेंटली, प्राउडली। तो तब से मतलब मेरी मन में इच्छा जगने लगी कि मैं जॉब करूंगी, अच्छा जॉब करूंगी। और रही बात लाइफ को जीने की, तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपने गांव से यहाँ पर आई हूँ, दिल्ली में आई हूँ, तो मैं बायोलॉजिकल एज ए मेल थी, बट मुझे फीमेल में कन्वर्ट होना है। तो उसको कन्वर्ट होने के लिए ऐसी बात है कि ना ही डॉक्टर मेरा रिश्तेदार है, और ना ही कोई, मतलब अगर वो कोई रिलेटिव रहेगा तो फ्री में कुछ नहीं कर देगा। हर एक चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है, रहने के लिए भी पैसा, खाने के लिए भी पैसा, कहीं जाना है तो भी पैसा। तो मैं यहाँ पर आई तो एनजीओ में जॉब किया, बट शायद आपको भी पता होगा कि एनजीओ लाइन में सैलरी इतनी नहीं होती है, क्योंकि एनजीओ ऑलरेडी फंड पे चलती है, तो सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है। 10,000 की सैलरी में कोई क्या खा लेगा और क्या बचा लेगा। तो मुझे उस दौरान पार्ट टाइम में एज ए सेक्स वर्क करना पड़ा स्टार्टिंग में। और मुझे बुरा भी नहीं लगता है कि मैं सेक्स वर्क करती हूँ, बिकॉज कोई काम बुरा नहीं होता है, देखने का नजरिया बुरा होता है। तो मैं सेक्स वर्क स्टार्ट की, और सेक्स वर्क की वजह से मैंने अपनी चीजों को सुधारा, इवन अपने माँ बाप के रिलेशन को सुधारा, बिकॉज जो एक पापा जो मुझे कभी घिसड़ा की नजर से देखते थे, उनकी मैंने बहुत ही सारी फाइनेंशियल हेल्प की, जिसकी वजह से उनको प्राउड होने लगा अपने बच्चे के ऊपर कि हाँ, मतलब पहली बार मेरे पापा के मुंह से मैंने सुना था कि अगर बेटा हो तो तुम्हारे जैसा बेटा हो। तो मुझे वो वर्ड बहुत अच्छा लगा था कि मेरे लिए वर्ड पापा ने बोला था, जो मेरे से नफरत करते थे। तो तब से मुझे सेक्स वर्क भी इतना बुरा नहीं लगता था, बट कहीं ना कहीं माइंड में वो है अभी भी कि मुझे एक अच्छे लेवल पे जॉब करना है। तो बहुत टाइम के बाद अचानक कोर्ट से मैसेज आया कि हमें कोई ट्रांस चाहिए जो अच्छी पढ़ी लिखी हो, और थोड़ी सी मतलब बातचीत उसकी अच्छी हो, और दिखने में भी अच्छी हो। तो मुझे ऐसे कोई मतलब ट्रांस चाहिए एसओसी मेंबर के लिए। वो कॉल आया मेरी माँ के पास, रामकली माँ के पास आया, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया।
और मुझे वहां पर मेरा नाम दिया। देन वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से ना मेरे पास कॉल आया कि आप एसओसी मेंबर के लिए सिलेक्ट हुई हो और आपको इस डेट को आना है। तो मैं उस डेट को पूरे फॉर्मल में ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, सब कुछ जैसे एक लॉयर वकील जाता है कोर्ट में वैसे गई। मतलब मेरा मन था ऐसा जाने का, तो मैं गई। तो शायद जज को भी मतलब मेरा वो परफॉर्मेंस अच्छा लगा। मतलब पूरा मतलब जो पहनने का तरीका था, बात करने का तरीका था, तो शायद वो जो जज थे उनको भी मतलब अच्छा लगा। और एसओसी मेंबर बता दूं, एसओसी मेंबर फिलहाल जॉब नहीं होता है हमारा, वहाँ पर एक नाम सिलेक्ट हो जाता है, वहाँ पर एक नाम फिक्स हो जाता है। जब भी लोक अदालत लगती है तो वहाँ पर हमें बुलाया जाता है एज एसओसी मेंबर के तौर पे। जज के बाद अगर साइन होता है किसी का तो वो एसओसी मेंबर का साइन होता है, तभी वो केस आगे बढ़ती है। तो उस दौरान मुझे वो मतलब वो पद देख करके, भले से थोड़े टाइम के लिए है, बट वो पद देख करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि एक्चुअली किसी मतलब मेरे साइन के बाद ही वो केस आगे बढ़ सकता है। और मुझे उस दिन से और ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा मेरी लाइफ को लेकर के कि हाँ, अगर मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ तो शायद भगवान की दया से और मेरी माँ की कृपा से और आशीर्वाद से शायद मैं आगे भी पहुंच जाऊं। तो मेरा कहना यही है सभी के लिए कि कभी भी अपनी लाइफ को लेकर के, चाहे अपने सिचुएशन को लेकर के हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहना चाहिए और हरदम बी पॉजिटिव थिंक, मतलब अपने सोच को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव चीजों को करो तो चीजें आसान और अच्छे होने लगते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपिका। आपने एकदम सही कहा कि कोई काम छोटा बुरा नहीं होता, और हम अपनी मोटिवेशन से कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जा सकते हैं, और आप और रामकली जी ट्रू एग्जांपल्स हैं इस चीज के। तो थैंक यू सो मच। तब एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, मैं मतलब एक छोटी मोटी क्लासिकल डांसर हूँ, बट मैंने कहीं से क्लास नहीं लिया हुआ है। बट बहुत सालों के बाद सिमी मैम के द्वारा वो मौका मिला कि गुरु की छत्र छाया मिली डांस की, जो सिमी मैम के जरिए मुझे मिला। उन्होंने 14 अगस्त को उनका कोई प्रोग्राम था जिसमें मीनाक्षी लेखी जी हैं जो मिनिस्टर हैं दिल्ली की, तो वो भी उसमें शामिल थी और बहुत ही बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। तो उनके सामने, बट उस समय कोविड टाइम चल रहा था, तो जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन मतलब जूम पे मुझे डांस परफॉर्मेंस देना था। तो पहली बार मुझे जो एज ए ओडिसी डांसर, जो ओडिसी क्लासिकल डांसर है, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। मतलब उतने बड़े गुरु के छत्र छाया में रह करके और ट्रेंड होना, और मतलब मुझे बहुत ये चीज अच्छा लगा था कि जब मैं डांस कर रही थी ना, तो मेरे सामने थी जो मेरी गुरु थी, वो मेरे सामने ही थी और मुझे वो कॉन्फिडेंस देती थी कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा करती हो, कम टाइम में तुमने बहुत अच्छा किया है, करती हो। तो थैंक यू सिमी मैम कि आपने मुझे वो मौका दिया कि मैंने अपने जो बंद कमरों के अंदर में डांस करती थी, कभी एज ए पब्लिकली मैं सुबह सोचा करती थी कि मैं पब्लिकली डांस करूंगी, भले ही जूम के द्वारा ही, बट मैंने बड़े बड़े लोगों के सामने, और मैम ने मुझे इंटरनेशनल लेवल पे डांस करवाया। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसी ट्रेंड डांस को 15 अगस्त को मैंने वहां पर किया था, जो राजधानी कॉलेज है। तो वहां पर सारे लोग वो आए थे, आर्मी वाले लोग आए थे, पुलिस वाले लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, पुलिस और आर्मी वाले लोग। तो उनके सामने एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना था, तो मैंने परफॉर्मेंस जब दिया तो बहुत ही तालियों की गूंज सुनाई दिया मुझे। अच्छे लोगों के, जो अच्छे लेवल के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे प्राउडली बोला कि यार तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, अपने डांस को और आपने कहाँ सीखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच सिमी मैम कि आपने मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपिका, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि मेहनत आपकी थी,
जो अंदर से एक जैसे कहते हैं ना मोटिवेशन के मुझे कुछ करना है, वो शायद मुझे झलका था जब आप ने मुझे पहले एक बारी डांस दिखाया, और मेरा मन था कि अगर इतना टैलेंट है आप में खुद के भरा हुआ है तो उसको बाहर निकालना है, और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी कोशिश को कामयाब किया और इतनी मेहनत की। और जैसे आपने बताया कि कोविड का समय था, तो मीला मित्रा जी और आप दोनों लोग जूम के ऊपर ही सारी प्रैक्टिस करते थे, और कैसे किया, मतलब मुझे भी बहुत ही ताजुब हो रहा है, आज भी ताजुब होता है कि कितनी मेहनत की दोनों ने और कितना अच्छा उसका फल मिला है। तो माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, माय गुड विशेस आर विद यू एंड विल ऑलवेज स्टे विद यू। थैंक यू दीपिका जी। थैंक यू सो मच दीपिका। आई थिंक आपका एग्जाम्पल हमारे लिए, हमें और जो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं कम्युनिटी से लोग, ट्रांसफॉर्मेशन फेलोज जो इस बैच के हैं, पुराने बैचेस के हैं, और जो कॉलेज स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, सब आपकी स्टोरी से मोटिवेट हो रहे हैं, आपकी लाइफ स्ट्रगल से। और जो आप अब बता रहे हैं आपने करियर कैसे प्रोग्रेस किया अपना, वो सारी स्टोरीज हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल हैं, और थैंक यू फॉर शेयरिंग देम। और मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी रामकली जी से कि रामकली जी, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि एक ट्रांस पर्सन के लिए करियर होना कितना इम्पोर्टेंट है, और उनको अपना करियर बिल्ड करने में क्या क्या स्किल्स सीखने चाहिए आज के टाइम के लिए? देखिए, मैं थोड़ा सा यही बोलना चाहूंगी कैरियर के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत टफ है हमारे लिए कि जब हम समाज में जाते हैं तो समाज हमें किस नजर से देखता है। हम फील्ड में जाके इतना काम करते हैं, लोगों की एडवोकेसी करते हैं, उनसे मिलते हैं, बट आज भी कहीं ना कहीं हिजड़ा छक्का हमें आज भी सुनने को मिलता है। देन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो बोलते हैं कि हम पूरा LGBTQ के लिए काम करते हैं, बट जब हम वहां पे जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, जब हम वहां पे जाते तो गेटमैन हमको रोक देता है कि यहाँ पे तो कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, आप अंदर क्यों जा रहे हो, आप तो हिजड़े हो ना। तो सबसे पहले यही है कि हमारे लिए जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने फंडर अभी तक काम कर रहे हैं, तो शायद काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस हमेशा जो रहता है वो HIV को लेके रहता है, शायद हमारी हेल्थ को लेके रहता है, लेकिन शायद हमारी जो लाइफ है ना उसको लेके नहीं रहता। तो शायद हेल्थ हमारी जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमारी जो अधिकार है वो भी है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें समझे कि एक ट्रांस के अधिकार क्या है। एक ट्रांस भी जॉब कर सकती है, जब एक मेल जॉब कर सकता है, एक फीमेल जॉब कर सकती है, तो एक ट्रांस भी जॉब कर सकती है। मैं चाहे फीमेल लुक में रहूं या मैं मेल लुक में रहूं, बट मेरी फीलिंग तो लड़की वाली है ना। बट जब मैं रोड पे जाती हूँ, हमें वहां पे ना ही तो कुछ और बोला जाता है, ना ही लड़की बोला जाता है, ना ही लड़का बोला जाता है, हमें सीधा वहां पे छक्का बोला जाता है। तो अगर हम बात फ्यूचर की करें तो ये 21वीं सदी है, जितना लोगों को अवेयर होना चाहिए था, लोग अभी उतने अवेयर बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करते हैं जो बहुत सारे लड़के लड़कियां, कॉलेज के स्टूडेंट जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ट्रांस के ऊपर, हमेशा वो वीडियो वायरल करते हैं कि हमने ट्रांस के लिए ये काम किया, वो काम किया। बहुत आते भी हैं मेरे यहाँ पे विजिट करने के लिए, बट कभी को जब मैं उनसे बोलती हूँ कि मेरी एक ट्रांस है, वो पढ़ना चाहती है, क्या आप उसको अपने कॉलेज में एडमिशन दिला दोगे, क्या आप उसकी पढ़ाई में मदद कर सकते हो क्या, तो वहां पे वो आके एकदम चुप हो जाते हैं। तो जितनी भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, तो इम्पोर्टेंट बहुत है लाइफ को लेके, और हमें स्ट्रगल हर जगह करना होता है, चाहे हमारी फैमिली हो वहां पे हमें लड़ना पड़ता है, चाहे हम बाहर निकले अपने घर से हमें वहां पे लड़ना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं जॉब की, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जेंडर को देख के वहां से निकाल दिया जाता है कि आप तो हिजड़े हो, ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। देन अभी जब से गाइडलाइन आई है, जो अभी हमारा TG बिल आया है, जब से उसके अंदर गाइडलाइन आई है कि ट्रांसजेंडर के लिए सभी कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजर्व सीट है जॉब के लिए, तो वहां पे एक चीज और देखने को मिलती है न्यू। जितनी मेरी बहनें जाती है इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे उनको ट्रांस होने की वजह से नहीं निकाला जाता, वहां पे उनसे बोला जाता है कि आप ने बोला था कि मैं 15,000 रुपए सैलरी लूंगी, बट दूसरा बंदा जो है वो 12,000 रुपए सैलरी में एग्री हो गया है, तो हम उसको नौकरी दे रहे हैं। या आपको इतना अच्छा कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको इतना अच्छा लैपटॉप चलाना नहीं आता, आप इतने अच्छे से टाइपिंग नहीं करते, जो बंदा इतने कम सैलरी में हमारे लिए कर रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट वो है। तो अभी ये चीज और सुनने को मिल रही है कि लोग अलग अलग तरीके से
सोच वही है लोगों की कि हिजड़ा आया है, लेकिन अलग अलग तरीके से हमें वहां से साइड करने लगे हैं। तो अभी हमारा टाइम ये है कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। हम अगर कहीं भी हमारे लिए जॉब को लेके कुछ ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ पे जाके बोल सकते हैं, या अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है। और जॉब हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो हमारा है। अभी की पहले क्या था, पहले हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, केवल एक ही रास्ता होता था, वो था हिजड़ा कल्चर। कि अगर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, हम अपनी फैमिली से दूर है, तो हम कहीं जाके चेले हो जाते थे और अपना टोली बधाई मांगते थे, अपना पेट भरते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी गुरु भी कितनों को चेला करेंगे। अगर एक गुरु के 10 चेले हैं, मैं अगर वहां पे जाती हूँ चेला होने के लिए, तो शायद उसके चेले मुझे ना चेला होने दे। वो बोले कि यहाँ पे तो मेरे पहले ही बंदे पूरे हैं, तो तुम क्या करोगे। फिर मैं जॉब के लिए जब अप्लाई करती हूँ तो वहां पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पे मुझे धिक्कार दिया जाता है। लेकिन अगर मेरे सोच अच्छी है और मेरे हाथ में कुछ ना कुछ स्किल है, मैं एक्टिव हूं अपनी बॉडी को लेके, मैं एक्टिव हूं अपनी सोच को लेके, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जॉब इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, और वो जॉब के लिए सामने से बोलते कि हम ट्रांस को जॉब देंगे, लेकिन जब ट्रांस वहां पे जॉब करती तो शायद उनके जेंडर को लेके, उनके हाव भाव को लेके वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें अभी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जॉब इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारे लिए कि शायद अगर मैं आज जॉब कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, और मैं आज पीयर एजुकेटर, फिर आउटरीच वर्कर, फिर काउंसलर, और अभी मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ। तो मेरा क्या है कि मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ, मैं अभी एक सीट पे बैठी हूँ कि हाँ, मुझे मेरी बहनों के लिए काम करना है, मेरे पास प्रोजेक्ट है, मेरे पास पैसा है, तो मैं उनके लिए यूज कर सकती हूँ। बट उनको मैं इतने सारे लोगों को शायद मैं भी जॉब ना दे पाऊं। अगर मेरे साथ मेरी 3 या 4 बहनें मेरे पास आती है कि रामकली जी हमें जॉब की नीड है, तो आप हमें जॉब दो, तो वो नहीं मैं भी दे पाऊंगी। तो अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम बात करते हैं जॉब को लेके, और मेरी कोई भी बहन जाती है जॉब करने के लिए, तो शायद उसको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा वहां पे। उसको उसके अधिकार पता होना चाहिए कि मेरे अधिकार क्या है। अगर मुझसे कोई बोलता है मेरे जेंडर को लेके कि आप तो हिजड़े हो, आपके लिए जॉब नहीं है, तो मुझे वहां पे क्या बात करनी है। अभी हर चीज की गाइडलाइन है, शायद टीजी बिल के अंदर ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आपके जेंडर को लेके आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो आप उसके ऊपर कौन सी एफआईआर कर सकते हो। जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें एक्समिट मिलने लगेगा। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने मेट्रो में 2 लोगों की जॉब लगवाई है। 2 लोग नोएडा मेट्रो में, एक रेम्बो करके, जितनी मेरी बहनें शायद सबको ना पता हो, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि नोएडा सेक्टर 50 में एक मेट्रो स्टेशन है जो कि रेम्बो नाम से है, और वहां पे अभी 5 ट्रांसजेंडर, जिसमें से एक ट्रांस मैन है, 4 ट्रांस वुमेन है, वो लोग जॉब कर रही हैं। नोएडा अथॉरिटी 39, वहां पे 2 ट्रांसजेंडर जॉब कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंदर, उनकी भी जॉब मैंने ही लगवाई है। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 लोग जॉब कर रहे हैं, एक का नाम है बबली और एक का नाम है जैरी, उनकी जॉब भी मैंने लगवाई है। देन वो इसलिए, शायद वो लोग इसलिए सेंसिटाइज है कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट से 2016 से जुड़ी हुई हूँ। 2016 में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें रोड पे खड़े होके, सिग्नल पे खड़े होके कुछ ट्रांस लोगों का अवेयर करते थे, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, तो वो मैं ही थी। और मैं अपनी 45 ट्रांसजेंडर बहनों के साथ मिलकर रोड पे अवेयरनेस प्रोग्राम करती थी। तो वहीं से एक सोच हुई कि मैंने वहां पे सर से बोला कि सर, जब मेरी बहनें रोड पे खड़े होके, आप देखते हैं जब हम वहां पे सिग्नल पे जाते तो और भी बहुत सारी ट्रांस आती थी जो कि बेचारी वहां पे अपना पेट भरती थी सिग्नल मांग के। तो मैंने उनसे बोला, सर आप देखिए, ये लोग ना ही धूप देखते हैं ना ही छांव देखते हैं, ये हर गाड़ी के पास जाके दरवाजा खटखटाते हैं। जब हम सिग्नल पे खड़े होके लोगों के आगे हाथ फैला सकते हैं, तो शायद हम इस सिग्नल पे खड़े होके लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। तो आप, मैं ये नहीं बोले कि हम इतने सारे लोग हैं आप सबको जॉब दो, आप एक जन को जॉब दो, एक शुरुआत तो होगी ना। शायद अगर हम कोई भी आग लगानी होती है तो एक चिंगारी बहुत होती है आग लगाने के लिए, तो वो आग की शुरुआत मैंने की है। तो फर्स्ट मैंने वहां पे जॉब दिलवाई बबली को, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट गेट नंबर 4 पे बैठती है। दूसरी हमारी जहरी है जो कि कड़कल डूमा कोर्ट के अंदर बैठती है। तो यही है कि अभी लोग समझने लगे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन
जिस तरीके से समझना चाहिए हमारे राइट्स को लेके, हमारे अधिकारों को लेके, अभी उस तरीके से नहीं समझते हैं। और मेरी जितनी बहनें हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाती हैं तो थोड़ा स्ट्रांग होके जाएं, थोड़ा अपने बारे में जान के जाएं कि अगर मेरे से कोई ट्रांस होने की वजह से बोलता है कि आप ट्रांस हो, आप किन्नर हो या आप हिजड़े हो, ये हमेशा सुनने को मिलता है हमें, और ये चीज हमेशा सुनने को मिलता है। या पीछे से जब मैं आगे जा रही होती हूँ, पीछे से लोगों के कमेंट आते हैं, हिजड़े भी आए हैं यहाँ पे, तो वहां पे मुझे किस तरीके से बात करनी है, वहां पे मैं कौन सा लीगल एक्शन ले सकती हूँ। शायद ये चीज हमें पता होगी तो शायद जो अभी तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो एक क्राइसिस होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। जी जी रामकली जी, और आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में क्या स्किल्स ट्रांस पर्सन्स को मतलब नए सीखने चाहिए ताकि वो अपने करियर में आगे जाएं? देखिए, स्किल सबका अलग अलग है। जैसे कि अभी आप ही की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो हमारा प्रोग्राम चला है, जिसमें हमने अपनी बहनों को इंग्लिश सिखाई है, कंप्यूटर सिखाया, तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है कि हमारी 6 ट्रांसजेंडर बहनें फ्लिपकार्ट के अंदर जॉब कर रही हैं, जो कि जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, जिनको कंप्यूटर नहीं आता, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरे हिसाब से ये है कि मैं सामने वाले पे शायद ये थोप नहीं सकती। अगर मुझे दाल चावल पसंद है, सामने वाला बोलेगा कि आप बिरयानी खा लो, तो शायद मुझे बिरयानी, नाम अच्छा है बिरयानी, तो शायद मुझे बिरयानी उतनी ना अच्छी लगती हो। तो मेरे हिसाब से मेरी ज्यादातर बहनें जो काम करती है वो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, स्टिचिंग बहुत अच्छा करती हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं, और बहुत सारी मेरी फ्रेंड है जो कि अच्छा, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है और अच्छे से सामने वाले बंदे को पढ़ा भी सकती हैं। तो जिसका जो स्किल है वो शायद मेरे हिसाब से उसमें जाए और वो सीखे और उसी में अपना फ्यूचर बनाए। मेरा स्किल था एनजीओ लाइन में, तो मैंने एक प्यूरिफिकेटर से शुरुआत की और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये मेरा स्किल था कि मुझे एनजीओ में अपना फ्यूचर बनाना है। अगर कोई मेरी बहन है वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो मेकअप करना है और मैं आगे जाके बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, जी तो शायद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं। आप सब बैठे हो, सिमी मैम एग्जांपल बैठी है इस चीज का, जो कि हमेशा ट्रांस के लिए सपोर्ट में खड़ी रहती है। अगर उनसे कोई भी ट्रांस बोलता है मैम मेरे को मेकअप सीखना, हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपके लिए लेके आती हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ। मैम मुझे इंग्लिश सीखनी, हाँ मैं आपके लिए टीचर का अरेंजमेंट कराती हूँ। मैम मुझे कंप्यूटर सीखना, हाँ ठीक है मैं आपके लिए कंप्यूटर भेजती हूँ। मेरे यहाँ पे 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं आपके, जो कि लोग आते हैं और सीखते भी हैं। तो इस चीज का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। तो जितनी मेरी बहनें मेरे को सुन रही हैं, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी एक रास्ता खुला हुआ है। सामने सिमी मैम भी बैठी हुई हैं मैम के साथ साथ, तो जिसको जो अपने लिए बोलना है वो बोल सकते हैं। और इतना मुझे सिमी मैम के ऊपर भरोसा है कि वो हमारे लिए कर देंगी, और वो करती भी हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है कि सिमी मैम हमारे यहाँ से सीख के कंप्यूटर और इंग्लिश सीख के अभी 6 ट्रांसजेंडर जो हैं वो फ्लिपकार्ट के अंदर जॉब कर रही हैं। तो जो भी मेरी बहन मुझे अच्छे से सुन रही है वो सिमी मैम से अपने लिए बोल सकती हैं कि मैम मेरा इस चीज में स्किल है, आप मुझे इस चीज में सपोर्ट करो। जी रामकली जी, आई थिंक जो आप, सिमी मैम वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, nothing. I'll just wait for people to come up. And रामकली जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या मार्ग होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रामकली जी, जैसे आपने कहा कि मतलब जिसमें इसके मतलब इंटरेस्ट है उनको उस एरिया में जाना चाहिए, और फिर उसके बाद अपनी मोटिवेशन है, अपॉर्चुनिटीज खुलती रहती हैं। आई जी थिंक मैम। ये हमारा एक अच्छा टेक अवे है जो आपने कहा उसमें से। जी। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दीपिका जी से पूछना चाहूंगी कि दीपिका, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेलो रह चुकी हैं, आपने अपनी फेलोशिप कंप्लीट करी हमारे साथ कोर्स किया आपने, तो आपकी भी एक पूरी जर्नी रही है। तो आपके अकॉर्डिंग जब जैसे अब आप एक एसोसिएट बन गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्किल्स जो हैं जो अब आपके काम आते हैं जब आप करकड़ूमा कोर्ट जाती है? दीपिका आप म्यूट पे हैं। कोई बात नहीं। एक्चुअली जब मैं एजुकेशन ले रही थी तो क्लास 8 तक तो मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, कैसे भी करके। bullying भी बहुत हुआ मेरे साथ,
बट मैंने फिर भी पढ़ाई की। लेकिन जब क्लास 9 से एडमिशन लेने की बात हुई थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम में आई थी। मतलब जब कॉलेज में एडमिशन हो गया तो जब कॉलेज में जाती थी मैं तो बच्चे ऐसे देखते थे कि मैं क्या क्या आ गई हूँ कॉलेज में। बच्चे जो लड़कियां होती थी वो मतलब खुद तो देखती ही थी, दूसरों को भी दिखा करके मतलब हंसते थे, मतलब बहुत सारे कमेंट करते थे। इवन मेरे पापा ने कॉमर्स में एडमिशन करवाया था, बट मैं साइंस के क्लास में जाके बैठती थी। क्यों? क्योंकि मैं इतनी मतलब सहमी और डरी सी रहती थी और एक थोड़ी सी साई भी थी मैं बचपन से ही। तो वो भी था, तीनों चीजें थी जिसकी वजह से मैं सर से भी नहीं पूछ पाती थी कि सर कॉमर्स का क्लास किधर है, और बच्चों से भी नहीं पूछ पाती थी। तो इवन जब एग्जाम का टाइम आया तो उस समय रजिस्ट्रेशन होता है क्लास 10th में जाने के लिए। तो मैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाई बिकॉज मैं कॉमर्स के बजाय मैं साइंस क्लास में बैठती थी, तो वो मेरा मिस हो गया फॉर्म फिलअप करना। तो मैं फिर से मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक साल पूरा बर्बाद जाएगा। तो इवन मतलब भगवान की शुक्र था कि मेरे पुराने स्कूल टाइम के मेरे एक टीचर मिले और मुझसे बातचीत की और मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट फॉर्म डाल दो और तुम बस ट्यूशन लेना और तुम बस एग्जाम देने जाना। तो मैंने बोला ओके। तो मैंने मतलब प्राइवेट फॉर्म भर दिया ओपन से। उसके बाद बस मैं ट्यूशन लेने जाती थी क्लास 10th का, और मैंने क्लास 10th और 12 ओपन से किया। मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। तो फिर से कुछ सालों के बाद जब मैंने 12 कंप्लीट कर दिया तो मैंने अपने घर वालों से मैंने बोला कि मुझे मेकअप का कोर्स करना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं, रिलेटिव क्या बोलेंगे, फलाना ढिमकाना। तो घर वालों ने नहीं करवाया। तो उन लोगों ने लड़कों वाला मतलब अब तो मतलब मेरी नजर से तो लड़कों वाला ही होता है, बट कोई भी कोर्स जेंडर देखकर नहीं होता है। बट मेरे लिए तो था, क्योंकि वो थोपा जा रहा था ना कि तुम लड़का हो, तुम लड़कों वाला काम करो। तो मेरे घर वालों ने कंप्यूटर हार्डवेयर में एडमिशन करवा दिया। तो बट मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तो वायर जोड़ने से भी डर लगता था कि करंट न लग जाए। वो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या कहाँ से करेगा। तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर से वहां से कुछ नहीं हुआ। फिर से मेरे घर वालों ने फिर से मैंने बोला, रिपीट किया कि यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, कम से कम मेरा वाला तो एक बार आप लोग सुन लो। पर दोबारा भी नहीं मेरे घर वालों ने सुना। उन लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एडमिशन करवा दिया। तो सॉफ्टवेयर भी जाती थी मैं, बट वहां पर भी केवल लड़के लड़के रहते थे और मुझे लड़कों के बीच में रह करके सीखना बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि कोई भी लड़के मुझसे बोलते नहीं थे, कोई बात नहीं करता था। तो मुझे अजीब सा लगता था, अकेला अकेला रहती थी मैं। तो मैंने जैसे तैसे करके मैं वो कंप्यूटर क्लास कंप्लीट की और उसके जरिए भी जॉब का कुछ नहीं हुआ। तो मेरे घर वालों ने बीए में एडमिशन करवाया। तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैंने एग्जाम दिया, बस थर्ड ईयर एग्जाम नहीं दिया बिकॉज कॉलेज के कुछ बच्चों ने कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेट कर दिया था मुझे, जिसको मुझे थर्ड ईयर में एग्जाम छोड़ना पड़ गया था और मेरा पूरा साल बर्बाद गया। तो अभी मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी। और रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मैंने होता है थोड़े थोड़े मात्रा में सीखना, तो मैंने कंप्यूटर को थोड़े थोड़े मात्रा में सीखा हुआ है। तो मैं कंप्यूटर क्लास को एक अच्छे से सीखना चाहूंगी ताकि मैं कंप्यूटर के जरिए बहुत कुछ कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी सेक्टर में जाती हूँ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊँ, किसी भी सेक्टर में अगर मैं जाती हूँ तो हर एक सेक्टर में कंप्यूटर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज के टाइम में आधे से अधिक काम तो कंप्यूटर भी होते हैं। तो इसलिए मैं कंप्यूटर को अच्छे से सीखना चाहूंगी ताकि आगे चल के किसी भी चीज को लेकर के गलतियां ना हो, वो मिस्टेक ना हो, ना कोई ये बोल सके
कि आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है, इसकी बिहाफ पे हम आपको जॉब नहीं दे सकते, आपने ये नहीं पढ़ाई की, आपको इस बिहाफ पे जॉब नहीं दे सकते। मैं ग्रेजुएशन भी करूंगी, कंप्यूटर भी सीखूंगी, प्लस मेरा एक सपना है कि मैं अपने डांस को आगे ले जाऊं। तो मैं अब कोविड खत्म हो जाता है तो मैं एक क्लासिकल टीचर के अंडर में मैं अपना क्लास का स्टार्ट करूंगी, ताकि मैं डांस तो आता है, बट होता है ना कि क्लियरिटी आना, वो एक टीचर के हाथों में होता है कि क्लियर डांस को क्लियर मूवमेंट देना, स्टेप देना, डांस का नाम देना, वो टीचर के हाथ में होता है। तो इसलिए मुझे एक अच्छा प्रोफेशनली डांसर बनना है, ताकि मैं अपने डांस को भी आगे ले जाऊं। मैं मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं बन पाई, बट हाँ, भविष्य में बहुत ही अच्छा एज ए ट्रांस होने के बावजूद भी एक अच्छा डांसर बनना चाहूंगी, ताकि मेरे घर वाले और मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्राउडली बोल सके कि हाँ, ये दीपिका है जिसने कुछ बन के दिखाया। और शायद वो मूवमेंट ऐसा होगा, वो टाइम ऐसा होगा कि जिसकी वजह से मुझे देख करके शायद मेरी भी जितने भी बहनें हैं, मेरे समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनको मोटिवेट मिले कि इसने इतना कुछ हासिल किया अपने दम पे रह करके, तो शायद हम भी कर सकते हैं, बिकॉज ये भी हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो अगर ये कर सकती है एक छोटे से गांव से आकर के, तो हम भी कर सकते हैं। तो शायद अगर मैं किसी के लिए मोटिवेशन बनूं, शायद किसी को अगर मैं 2 बंदों को भी मोटिवेट कर पाई ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। जी दीपिका, आप 2 लोगों के लिए नहीं, आप काफी लोगों के लिए मोटिवेशन है। और जो भी लोग अभी सुन पा रहे हैं, आई थिंक सब मोटिवेट हो रहे हैं। और अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई ऐसा है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है, थिंक ने हैंड रेज भी किया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम माही है। मैं मित्र ट्रस्ट से हूँ। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। जी हाँ जी। जैसे ना मैं सिमी मैम से है मेरा सवाल कि जैसे ना मुझे ना सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो इस लाइन में मैं अपना फ्यूचर मतलब कैसे बना सकती हूँ मतलब? Mahi, I'll take this question. Navjot, with your permission. यस मैम। या तो माही, आप मित्र ट्रस्ट से हैं, जहाँ पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है, और आपने अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट किया है और सेकंड फेज में जा ही रहे हैं। तो आपकी जो सी करियर काउंसलिंग होगी, या जो भी आपके करियर में, आपने जैसे बताया था कि आप एक ऐसे सिंगर हैं जो बोथ मेल एंड फीमेल आवाज में गा सकती हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उस तरह की आपको कोचिंग भी दे सकते हैं और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां आप जाके हो सकता है आगे अपना ही कोई शो कर पाए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको भी मालूम चलेगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए, कितना रियाज करना पड़ेगा, किससे मिलना है, किस में जाके ऑडिशन देना है। तो डेफिनेटली हम लोग हेल्प करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि हर एक ट्रांस पर्सन को, चाहे वो ट्रांस मैन हो या वुमेन हो, जो उनकी करियर की एस्पिरेशन है और जो उनका स्किल सेट है उसको हम आगे बढ़ाएं और एक लाइवलीहुड का जरिया दे पाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू माही फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं अब रामकली जी से जानना चाहूंगी, जैसे वो भी एसोसिएट रह चुकी हैं हाई कोर्ट में, तो उनका तजुर्बा कैसा रहा वहां पे? थैंक यू मैम, पुरानी चीज याद दिलाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जब मैं 2016 में फर्स्ट मैं वहां पे गई थी लोक अदालत के अंदर, तो वहाँ लोक अदालत में ये है कि मैं वहाँ पे एसोसिएट मेंबर हूँ, और एसोसिएट मेंबर का काम होता है कि जब जज साहिबा कोई भी केस फाइल करती है, तो वहाँ पे जब 2 लोगों का फैसला होता है, जब किसी का फैसला होता है और केस फाइनल हो जाता है, तो उसकी फाइल पे 3 लोगों के साइन होते हैं।
एक सीनियर जज साहिबा के, एक जूनियर जज साहिबा के, और तीसरे जो होते हैं जो वहां पे एसोसिएट मेंबर होता है उसके होते हैं। तो मैं बहुत खुश थी, मेरा फर्स्ट डे था और लोग मुझे देख रहे थे कि एक ट्रांस बैठी हुई है। तो सब लोग जब मेरे पास आ रहे थे फाइल लेके, मैम स्पेशली बोल रही थी उनसे कि जो यहाँ पे एसओसी मेंबर बैठी हैं रामकली जी, प्लीज उनसे साइन जरूर अपनी फाइल पे कराए, वरना आपकी फाइल जो है वो आगे नहीं जाएगी, वो फाइल नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग मेरे को देख के उनके चेहरे पे अलग सा एक स्माइल था, हंस रहे थे। दो लोगों का रिएक्शन बहुत अलग था। जब वो फाइल लेके मेरे पास आए तो उन्होंने मेरी तरफ को देखा तो उन्होंने बोला, रे छक्कन से भी साइन कराएंगे। और मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। तो जब उन्होंने सबके सामने भरी हुई अदालत में ये चीज बोली कि अब छक्कन से भी साइन कराएंगे, तो सब की नजरें ना मेरी तरफ हो गई, सब मेरी तरफ ना देखने लगे। और वहां पे फर्स्ट टाइम मुझे मतलब एक अजीब सा होता है ना, जैसे एक शर्म, पता नहीं वो कैसा ही टाइम था, वो मैं कभी याद भी नहीं करती। वो एक अजीब सा हर चीज मुझे याद आ गई उस टाइम पे, जब उसने सबके सामने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट की कि एक छक्कन से भी साइन करवाने पड़ेंगे रे फाइल पे। तो वहां पे फिर जज साहिबा हमारी स्ट्रांग थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने उसकी फाइल ली और वो लेके उन्होंने रख दी। उन्होंने बोला आप बाहर जाए, आपका जो केस है वो 2 महीने बाद अब इसकी सुनवाई होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज है, जो बोलने वाला बंदा है वो कहीं भी कुछ भी बोल देता है। तो यही मैं बार बार बोल रही हूँ, जब सामने वाला बंदा ये नहीं सोचता कि हम इस ट्रांस को यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमें यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। और आप एक चीज सोचिए, वो एक अदालत है, वहां पे मैं बैठी हूँ, तो वहां पे शायद मेरा भी एक रुतबा है, जब मैं वहां पे एक सीट पे बैठी हूँ तो। लेकिन लोगों ने मुझे वहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी स्पेशली इतने ढाके से, इतने सीना तान के उसने बोला छक्कन से भी साइन करवाने पड़ेंगे। रे आते तो ना करवाने के, हम अपनी दूसरी लैंग्वेज में बोले रे इससे तो नहीं करवाने के हम। तो वो मेरे लिए एक अलग सिचुएशन थी। तो वही चीज है कि जब लोग नहीं सोचते कि हमें एक ट्रांस को कहाँ पे क्या बोलना है, तो हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हर जगह गलत होते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम हर जगह सही भी होते हैं। जब हम कहीं जॉब मांगने के लिए जाते हैं तो वो भी हमारा अधिकार है। जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी हमारा अधिकार है। जब हम किसी चीज में, चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो, जब हम उसमें ट्रेवल करते हैं तो वो भी हमारा अधिकार है। लेकिन हमें लोग कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन करने से, हमें धिक्कारने से कोई भी जगह नहीं छोड़ते। तो हमें स्ट्रोंग होने की ज्यादा जरूरत है, हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत है। जब मेरे साथ फर्स्ट ये हादसा हुआ, तो जब 15 दिन बाद दूसरी लोक अदालत थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां पे जाऊं। क्योंकि जब इतनी बड़ी जज में, जहां पे लोग कम से कम नहीं तो 50-60 लोग थे वहां पे, उनके सामने उन्होंने इतनी बड़ी चीज बोल दी, छक्कन से भी साइन होने, तो कुछ लोग वहां पे हंसने लगे, कुछ लोगों के फेस पे अलग सी स्माइल आ गई, कुछ लोग मेरे को घूर के देखने लगे। तो वो एक चीज होती है कि हम सिचुएशन को किस तरीके से फेस कर रहे हैं। तो जो मेरे साथ, अगर शायद मैं वो चीज यहाँ पे बिठा लेती, तो शायद आज जो मैं 2016 से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एसओसी मेंबर हूँ, तो शायद जब मेरा दूसरी बार 15 दिन बाद मुझे जाना था, तो बोलते ना कि 10 बुरे होते हैं तो एक अच्छा भी होता है। स्पेशली उन्हीं जज साहिबा ने मुझे कॉल की और बोला, रामकली जी आप ठीक है ना? मैंने कहा हाँ मैम ठीक हूँ। कह रहे आपको आना है, और जहां पे अभी आप मेरे से दूर बैठे थे, अभी आपको मेरे पास बैठना है, आपको मेरी बराबर में बैठना है। तो वहां से मुझे एक हौसला मिला कि शायद मैम ने मेरे बारे में सोचा और मुझे अपनी बराबर में बिठाया। तो वो मेरे लिए एक नई जर्नी थी, मतलब नई सोच थी कि मैंने वहां से अपनी एक नई शुरुआत और की, कि मैंने अपने आप से, अपने माइंड से लड़ाई की और लोगों की बात को ना सोच के मैं वहां पे बैठी, और मैं 2016 से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एसओसी मेंबर हूँ। जी, थैंक यू रामकली जी। आई थिंक आपने इतनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी हमारे साथ, और ये हमारे लिए काफी मोटिवेशन की बात है। और डिस्क्रिमिनेशन के ऐसे इंसिडेंट्स कम्युनिटी के साथ बहुत कॉमन है, पर हमें आपके जैसे एग्जांपल्स चाहिए जो हार नहीं मानते और इन सारे ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और थैंक यू मैम। जी, और अगर ऑडियंस में से भी कोई अपना एग्जाम्पल शेयर करना चाहे कि उनके साथ वो वर्क प्लेस में या फिर कहीं पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हुई हो कभी, तो हम एज अ कम्युनिटी अभी डिस्कस कर सकते हैं। वी आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर।
और अगर कोई कमेंट्स हैं आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं साथ साथ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दीपिका से पूछना चाहूंगी। दीपिका, जैसे आप जानते हैं कि सोशल परसेप्शन जो होता है कि लोग यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते कि कम्युनिटी के लोग मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस में जा रहे हैं या फिर अलग काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है, अगर हुआ है तो आप कोई एग्जांपल शेयर करना चाहे, जनरल रिएक्शन क्या रहता है नॉर्मल लोगों का? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मतलब अभी तो मैं जॉब मैंने किया है, स्टार्टिंग से मैंने जॉब किया है, मैंने कभी मतलब ना ही चोरी बधाई किया है, ना ही रेट मांगा है, मैं ऐसा कोई है ना, मैं उस कल्चर को मैंने नहीं अपनाया है, बट स्टार्टिंग से जॉब किया है। तो हाँ, एक बार मतलब ऐसा हुआ था कि मैं अपना लेयर सेटिंग लेने गई थी और मुझे ज्यादा फॉर्मल में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो फॉर्मल लुक एक अलग लुक रहता है, तो मुझे फॉर्मल रहना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कहीं जाती भी हूँ तो फॉर्मल में रहती हूँ। तो मैं फॉर्मल में गई थी लेजर सेटिंग लेने के लिए। तो मैं जब उधर से आ रही थी, मतलब मैं थी और मतलब हमारी कुछ फ्रेंड लोग भी थी, तो हम लोग उधर से आ रहे थे, तो होता है ना कि कुछ पहनावे का भी ना इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उधर से आ रही थी तो हम लोग एक शॉप पे खड़े होकर चाय पीने लगे, तो अचानक से जो हमारे समुदाय के बड़े लोग होते हैं, जो ये खिजड़ा घराने से होते हैं जो लोग, तो वो लोग आए थे। तो जो उसमें से जो बड़ी हेड थी, जो जिनको गुरु बोला जाता है, तो जो बड़ी हेड थी, तो उन्होंने मुझसे मतलब हमें बुला करके पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बोल। तो उनको लगा कि मतलब हम लोग कुछ गलत है, चाहे मतलब जो भी उनके दिमाग में हुआ, उन लोगों ने उस बिहाफ पे पूछा हमें बुला करके। बट हमने रिस्पेक्ट दिया उनको कि पहले उनको जाकर के सलाम नमस्ते किया, मतलब अपने लैंग्वेज में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हाँ तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मतलब उन लोगों ने बोला कि तुमने किसी के चेला हो, तो हमने बोला नहीं नहीं गुरु, हम किसी के चेला नहीं है, हम लोग जॉब करते हैं। तो मतलब मेरी जो फ्रेंड थी वो सूट में थी और मैं फॉर्मल में थी, तो उन्होंने एक बार मुझे ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा, तो बोला कि ठीक है तुम लोग कहाँ जॉब करते हो, तो मैंने बोला कि हम यहाँ पे जॉब करते हैं। तो उन लोग का रिएक्शन, वो जब उन लोगों ने की तो हम लोग जॉब करते हैं, तो उन लोग का रिएक्शन अच्छा रहा। तो लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाँ तुम लोग क्यों जॉब कर रहे हो, ये वो तुम लोग की वजह से बदनामी हो रही है, ऐसा उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। उनका रिएक्शन बहुत ही अच्छा रहा कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात तुम लोग जॉब कर रहे हो, लेकिन ऐसे मत घूमा करो, कोई और आ जाएगा तो तुम लोग मतलब क्या तुम लोग कुछ गलत ना कर दे, तो प्लीज मतलब चाय वाय पियो और आराम से अपने घर चले जाओ। तो उनका रिएक्शन कुछ बुरा नहीं था, और ना ही उन लोगों ने कुछ बुरा बोला, उन लोगों ने बोला कि अच्छी बात है तुम लोग जॉब कर रहे हो। और इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एनजीओ में लोग आते हैं जो लोग टोली विदाई करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग बोलते हैं कि मतलब मेरी रामकली माँ से बोलते हैं लोग कि हाँ रामकली हमारे लिए कहीं जॉब लगवा देना, कि रोज 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 का मांगना ना मतलब हमसे होता नहीं है, हमें भी मतलब थोड़ा सा इज्जत वाली जॉब करने का मन है। तो मतलब मेरी माँ बोलती है कि जॉब में तो तुमको कम सैलरी मिलेगी, बोलते हैं लोग कि कल कल सुकून की तो 2 रोटी खाएंगे, तो रोज का वो है तो नहीं होगा। तो ये चीजें सुन के अच्छा लगता है कि कम से कम हिजड़ा घराने से भी लोग आते हैं और बातें बोलते हैं, जो हमारे मन में डर बना रहता है कि नहीं अगर हिजड़ा घराने के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि ना हाँ तू जॉब कर रहा है, तू जॉब कर रही है, वो हमारी बदनामी करा रही है। तो ऐसा उनकी सोच नहीं है, उनको अच्छा लगता है कि उनके समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं और उनके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, ना कि उनके नाम को डुबा रहे हैं। तो इसलिए ये देख करके अच्छा लगता है। और अभी तक तो कोई नेगेटिव
बातें या नेगेटिव थिंक नहीं हुआ है कि जो मैं बता। ठीक है, अच्छा लगा दीपिका ये जानकर के कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी भी काफी सपोर्ट है कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, एंड बाहर से भी सपोर्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी रामकली जी को। रामकली जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि अगर कोई एसोसिएट बनना चाहता है लोक अदालत में, तो इस एसोसिएट बनने का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा बताइए। देखिए, एसोसिएट अभी क्या है कि वहां पे जब नीड होती है, जिस तरीके से जॉब वहां से निकलती है कि हम जॉब करना चाहते हैं, या हमारे यहाँ पे लोक अदालत में 2 ट्रांसजेंडरों के लिए जॉब है, उसी तरीके से एसोसिएट के लिए वो लोग अप्लाई मतलब डिमांड करते हैं। और मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई, तो जो भी लोक अदालत के अंदर या दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांस के लिए, वो सबसे पहले मेरे पास आती है। तो जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ और मैं उनको भेज देती हूँ। अभी वहां पे उन्होंने बोला था कि हमें 1 जन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने दीपिका को वहां से जोड़ा है। अभी उन्होंने बोला है कि जनवरी में वहां पे 5 लोगों के लिए वो लोग परमानेंटली वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो अभी कोविड की वजह से वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है। बाकी प्रोसीजर जो एक जॉब के लिए रूल्स होता है, सेम वही है। जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से एसोसिएट के लिए हमारे पास कॉल आएगी और हमसे वो बात करेंगे, और हम उस तरीके से ही वहां पे उसी रूल को फॉलो करके वहां पे हम एसोसिएट बनते हैं, जिस तरीके से एक परमानेंट जॉब के लिए होता है। क्योंकि मैंने उनके साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए काम किया है, ट्रैफिक के लिए उनके साथ काम किया है। बहुत सालों से मैं उनकी सारी मीटिंग अटेंड करती हूँ। मैं वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एज ए मेंबर, एज एसोसिएट कम्युनिटी, मैं उनसे 2-3-4 तरीके से जुड़ी हुई, इसलिए वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो मेरे को बताते, फिर मैं जितने मेरे अपने लोग हैं मैं उन तक वो पहुंचाती हूँ। रामकली जी, एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमारे ऑडियंस में से एक क्वेश्चन है, हुएवर इट इज, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके बात करेंगे। जी बोलिए। जिसने लिखा था मेरा क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा बोलिए। मैम जी जी, आपका मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क का कनेक्शन वीक है, तो वीडियो ऑफ करके सिर्फ वैसे ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी, अब आ रही है। जी जी, हाँ आवाज आ रही है। ओके ओके। हाँ मैम, मेरा नाम संजना है और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और मेरे 2 साल से प्रिपरेशन भी स्टार्ट है UPSC एग्जाम के लिए। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। अभी मित्र ट्रस्ट जो है उधर में रहती हूँ। तो महाराष्ट्र शासन जो है, जो LGBT कम्युनिटी को लेकर जाता महाराष्ट्र के अंदर, वो उससे मैं भी बहुत नाराज हूँ। मैं UPSC एग्जाम जब देते हैं, जब कोई थर्ड जेंडर देने के लिए जाएगा मैम, अभी तो पता नहीं मुझे किसने दिया है नहीं दिया है, पर थर्ड जेंडर कभी देने की जाएगा तो आपके अंदर ऑप्शन नहीं करते मैं अपने एक IAS ऑफिसर हूँ। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैडम। संजना जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम लोग बाद में अगर फोन पे बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना समझ में आ गया कि आपको IAS के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है और महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है। जी
ओके इसका मैम, इसका थैंक एक यू। पॉइंट है। जी ओके बोलिए रामकली जी। हाँ मैम, इसका एक पॉइंट है, अगर हम इनको आईएएस बनना है तो देखिए आईएएस की सबसे पहले तो होती है पढ़ाई, है ना? जी हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं हाँ, हम आपको। आईएएस की सबसे पहले होती है पढ़ाई, तो हमें सबसे पहले पढ़ाई पूरी करनी है। और मेरे को थोड़ा सा समझ में आया कि शायद वहां पे जब महाराष्ट्र में वो जहाँ पे जाती है तो वहां पे ट्रांसजेंडर को लेके लोग सेंसिटाइज नहीं है, और वहां पे ट्रांसजेंडर के लिए शायद कोई कॉलम भी नहीं है ना? शायद मेरे को ये थोड़ा सा समझ में आया है उनका। जी हाँ, जी तो रामकली मेरा जी हाँ एक जी जी मैम। नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरा कहना यही है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर और अलग अलग जितने भी स्टेट है, सभी जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी बहनों के लिए, ट्रांस कम्युनिटी के लिए अलग से काम कर रहे हैं, तो शायद वहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेके अपने इस चीज को हम और क्लियर कर सकते हैं कि हमें आईएएस की पढ़ाई कहाँ से पूरी करनी है, और मैं अगर पढ़ाई करने के लिए जाती हूँ तो मुझे कौन से बैच में जाना है। और अभी सबके लिए एक चीज और बता दूं, हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अभी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गया है। देन अगर मैं अपने घर में, मैं जितनी मेरी बहनें मुझे सुन पा रही है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बता देना। देन मैं थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर रही हूँ। अगर मैं बाय बर्थ रिजवान हूं और मैं अपने घर में नहीं बताना चाहती कि मैं ट्रांस वुमेन हूं, और मैं आधार कार्ड में अपना जेंडर चेंज नहीं करवाना चाहती, तो मैं उस ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट को बनवा के अपना ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अपने लिए यूज कर सकती हूँ, लोगों को दिखा सकती हूँ कि मेरा बाय बर्थ नेम रिजवान है, ऐसे मेरा नाम रामकली है, और ये मेरा ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है। तो उससे जी क्या होगा, जब हमारा ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होगा, जब हम कोई भी पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, अगर वहां पे कॉलम हो या ना हो, देन वैसे अभी धीरे धीरे में सभी चीजों में कॉलम आने लगा है। जैसे कि हमारे नोएडा सेक्टर 30 भीमराव अम्बेडकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे उन्होंने शुरुआत की है कि अभी उन्होंने थर्ड जेंडर कर दिया है, क्योंकि वहां पे जितने ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, ये काम उनका है कि वो लोगों को जाके सेंसिटाइज करे, लोगों से बोले कि जब एक मेल का कॉलम है, एक फीमेल का कॉलम है, तो ट्रांस का भी कॉलम होना चाहिए। मैंने अपने यहाँ पे जाके बोला तो उन्होंने कर दिया है, अभी ट्रांस का कॉलम उन्होंने अदर क्वेयर लिख दिया है, उन्होंने डाल दिया है। तो सेम वही चीज है, अगर हम कहीं से भी किसी चीज की शुरुआत करते तो जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम कर रही है तो उसका सपोर्ट लेके हम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे काम कर रही है। जी जी थैंक यू रामकली जी। आई और थिंक रामकली जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ट्रांसजेंडर का जो सा अभी पोर्टल एक बना है, उसके थ्रू वी कैन गेट द ट्रांस सर्टिफिकेट, या एक अपनी एक आइडेंटिटी मिलनी शुरू हो गई है। स्लो है काम, बट शुरुआत है। और कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को, और सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये एक नई पहल है जो तो इस साल नहीं, सॉरी, लास्ट ईयर शुरू हुई थी। पिछले और साल अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो रिजवान जी हैं, मतलब रुद्रानी मैम हैं, नवजोत जी हैं, मैं हूँ, तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जितना भी जानते हैं डेफिनेटली हेल्प करेंगे। देन ये है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। नाइस। हम इसको यूज करके जितनी भी हमारी फैसिलिटी है, जो भी गवर्नमेंट से हमें स्कीम आएगी, वहां पे हम ये दिखा सकते हैं और वो स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, सब इस चीज का लाभ उठाए, अपना ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनवाए और अपने आप को इससे ज्यादा से ज्यादा जोड़े। ये हमारी एक पहचान है। जी जी हाँ, ये पहचान है, सही जी कहा। और ये पहचान पत्र बहुत 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 जरूरी है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए, जहाँ पे आपको रेंट करना है, बैंक का अकाउंट खोलना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं।
तो डेफिनेटली आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए और किस तरह से इसको रजिस्टर करना है वो भी पता होना चाहिए। जी, अभी इसके अंदर कुछ चेंजिंग हो रही है तो इसलिए उसकी जो साइड है वो बंद हो रही है। देन ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या है, देन अगर मेरा नाम रामकली है एज ए ट्रांस और बाय बर्थ मेरा नाम रिजवान है तो वो आधार कार्ड से लिंक हो रहा है। देन उसमें एक एफिडेविट भी लग रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, जब हम उसको सबमिट कर रहे हैं तो जो हमारा आधार कार्ड पे नाम है ना वो उसको ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हमारा ट्रांसजेंडर वाला नाम है जो हम उसके बराबर में अपना दूसरा नाम लिख रहे हैं, देन चाहे सौम्या हो, चाहे सुनीता हो, चाहे रामकली हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी वो थोड़ा चेंज हो रहा है, शायद इस मंथ से शुरू हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर सब लोग अपना अप्लाई कीजिए और फिर उसमें दोनों नाम मेंशन हो जाएंगे, एक ट्रांस का और एक मेल वाला। जी, थैंक यू सो मच रामकली जी। सिमी मैम आप म्यूट पे हैं। चैट में मैंने अभी देखिएगा एक लिंक भेजा है और वो ट्रांसजेंडर पोर्टल है, उसको ऐसा ही कहा जाता है, ट्रांसजेंडर पोर्टल, जिसके अंदर जो अभी रामकली जी ने बताया कि किस तरीके से आप अपना आधार कार्ड या अपनी आइडेंटिटी के बारे में एफिडेविट ना देने के लिए भी और अपनी एक पहचान पत्र बना सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी पोर्टल से मिलेगी। जी, thank you so much ma'am for sharing it, and thank you so much Deepika and Ramkali जी कि आप आज आए, और थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस जिन्होंने इतने अच्छी तरह एंगेज किया सबके साथ। एंड एक लास्ट चीज मैम, आप और दीपिका जो आप हमारी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहे उनके करियर के लिए। देखिए, कैरियर के मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिसका जो भी स्किल है, चाहे किसी भी चीज में, चाहे मेकअप में हो, स्टिचिंग में हो, पढ़ाई में हो। जैसे अभी एक बहन ने बोला कि वो आईएएस बनना चाहती हैं, तो बहुत सारी मेरी बहन है जो कि बोलती है कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। तो जो भी स्किल है उसे दिल के साथ करें और एक्टिव होके करें। पीछे से कौन बंदा हमें क्या बोल रहा है उसको प्लीज, जितनी भी मेरी बहनें हैं उसको यहाँ पे मत बिठाना, उसको यहाँ पे बिठाना, यहाँ की बजाय उसको यहाँ से सुनना और यहाँ से उसको बाहर निकाल देना और अपने काम को एक्टिव तरीके से करना और बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि जब आप सब आगे बढ़ेंगे तो आप, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जब आप सब आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ मैं भी आगे बढ़ूंगी। चाहे एक रामकली एक सीट पे बैठी हो, तो ये रामकली की सीट नहीं है, ये जितनी मेरी बहनें इस ग्रुप में है, जितनी बहनें इस चीज को सुन रही है, ये उन सबकी सीट है। अगर हमारी एक बहन कोई रैम वॉक करती है, वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करती है और वहां पे वो चलती है कि ट्रांस चल रही है, तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ हमारी पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी ट्रांस है वो सब उसके साथ चलती है। क्योंकि चेहरा एक होता है, सपोर्ट सबका होता है, वो चेहरा हमें सबको प्रेजेंट करता है। रामकली अगर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बैठती है तो वो रामकली का एक चेहरा है, पर सपोर्ट जितने भी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी ट्रांस बहनें हैं, सपोर्ट उन सबका है। क्योंकि वहां पे मैंने शुरुआत की है, आज रामकली वहां पे बैठी है, कल दीपिका वहां पे जाने लगेगी, परसों से शायद जो हमारी बहनें यहाँ पे हैं शायद इनमें से कोई बहन वहां पे बैठने लगे। तो हमारी एक की जीत सबकी जीत होती है। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं, जो भी उनके अंदर स्किल है वो अच्छे से करे, आगे बढ़े और हमारा सबका जो भी उनका टैलेंट है उसको बाहर निकाले, उसको दिखाए। और अगर एक मेरी बहन टैलेंट दिखाएगी तो वो सबको आगे लेके जाएगी। थैंक यू सो मच रामकली जी। एंड दीपिका, आपके फाइनल वर्ड्स, आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि किसी को भी आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एजुकेशन लेना जरूरी है, बिकॉज जेंडर एजुकेशन नहीं देखता है, एजुकेशन जेंडर नहीं देखता है, इसीलिए हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, देखो बुलिंग हर किसी के साथ होता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। बस फर्क इतना ही है कि ट्रांस के साथ थोड़ा सा ज्यादा होता है अकॉर्डिंग फीमेल टू मेल, फीमेल से मेल का अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर के साथ ज्यादा थोड़ा सा बुलिंग होता है। बट उसको मद्देनजर रखते हुए बातों को सुनो और गौर करो उस चीजों को, बिकॉज उस बुलिंग की वजह से
शायद हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। हमें जरूरी नहीं है कि हम किसी को थप्पड़ मार के जवाब दें। हमें जरूरी ये है कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएं कि शायद उसको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा कि देख, मैं ट्रांसजेंडर होकर के ही मैंने क्या कर लिया, और तू अगर मर्द था, तू आज कहाँ पे है और मैं आज कहाँ पे हूँ, तो वो खुद डिफरेंस नजर आ जाएगा पब्लिक को, सोसाइटी को और समाज को। तो इसलिए हमें एजुकेशन लेना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात रही अपने राइट को जानने की। राइट्स में जानने की बात क्या होती है, अगर आपको ट्रांसजेंडर बिल पता नहीं है, अगर आपको ट्रांसजेंडर बिल के बारे में पता नहीं है, तो आपको ह्यूमन राइट्स पता होना चाहिए। क्या मानवीय अधिकार आपका क्या है। जेंडर तो बाद में आता है यार, पहले तो अपना आपको मानवीय अधिकार पता होना चाहिए, क्योंकि आप पहले इंसान हो, जेंडर तो बाद में आया। तो इसलिए आपको ह्यूमन राइट्स का अधिकार पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स में क्या क्या अधिकार है ह्यूमन इंसान के लिए। और दूसरा, नालसा जजमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीजों की नॉलेज है ना, तो आप कोई भी जंग लड़ सकते हो इस समाज में। जी, थैंक यू सो मच दीपिका एंड थैंक यू सो मच रामकली जी कि आप लोग हमारे साथ जुड़े आज। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और आपसे हमने इतनी बातें सीखी। आई एम श्योर ऑडियंस ने भी काफी एंजॉय किया होगा और सबके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारा इंक्लूजन अड्डा का सेशन नेक्स्ट सैटरडे होगा एंड ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट वीक ऑल्सो, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइमिंग। And Inclusion Adda is a platform for career progression talks, and it is an initiative by CDF Transformation that aims to empower people of marginalized communities like transgender, people with disabilities, acid attack victims. It is a series of webinars for and by people from disadvantaged and minority communities. And it's been a pleasure to have you all, and wishing to see you all next week. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.